Hello, sirs. In the last lecture, I discussed triangle law and parallelogram law of vectors. Today, I will discuss their analytical approach. Now, what is this analytical approach? This analytical approach is nothing but the derivation of the expression of resultant of two vectors. Okay? Now, remember one thing. The analytical approach for triangle law of vectors and parallelogram law of vectors is same. Okay? So, since I will derive the expression for the resultant vector for under the name of triangle law of vectors. Okay? Both are same. All the steps they are same. The result is also same. Their applications are also same. Okay? Now, analytical approach for triangle law of vectors. Expression for resultant vector. Remember, when this triangle law or parallelogram is asked, it is usually asked for 3 marks or for 5 marks. Mostly, it is asked under the 5 marker section. So, it is very important. Okay? Copy this figure. Copy this figure. Now, in this figure, the side EF, it represents vector A in magnitude and direction. The side FH, it represents vector B in magnitude and direction. And the side EH, it represents vector R in magnitude and direction. Clear? Okay. Copied. Now, since I am making a dictation, okay, dictation is nothing but the consideration. What is consideration? Whatever we had marked in the figure, we have to describe the figure. We have to describe each and every physical quantity which is available in the figure, and what we are going to do in our calculations, we have to make a brief description of that. Okay, so ready, I am making a dictation. Okay, clear? Start. Consider the triangle EFH in which the side EF, comma, side FH and side EH represents vector A, comma, vector B and vector R in magnitude and direction. ओके, अब बेटा बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, कॉपी करना. This EF vector is equals to say vector A. This implies that the vector A in magnitude is written as say the length EF. Okay? Clear? The side
FH vector, it represents a vector B. This implies that the magnitude of vector B is, say, FH. Okay, the length FH. This EH vector is written as, say, vector R. This implies that the magnitude of vector R is written as, say, EH. Got it? Copy करें इसको. Done. Next line में बेटा continuation में लिखें, let theta be the angle between the directions of vector A and vector B. Full stop. Let alpha be the angle between the directions of vector R and vector A. Again full stop. Now in the next line, using triangle law of vectors, in the triangle EFH, अब बेटा ट्राइंगल लॉ लिखना है. ट्राइंगल लॉ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी करें, ध्यान से देख लें, रिकॉल कर ले. बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है और वेक्टर आर ऑपोजिट ऑर्डर में है. सो यूजिंग ट्राइंगल लॉ of vectors, this vector R equal to vector A cross vector B. That is, vector R is the resultant of vector A and vector B. बेटा बात समझ आ गई? तो अब हमें क्या करना है? हमें वेक्टर R का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है. मतलब वेक्टर R को वेक्टर A और वेक्टर B की टर्म्स में डिफाइन करना है. ठीक है? या यूं कह लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की टर्म्स में कैलकुलेट होगा. बात समझ आ रही? ओके. अब कंटिन्यूएशन में लिखें. इसे लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद दोबारा लिखें, लेट एच जी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट एच on the side EF when it is produced further. Okay, done. Now अब बेटा मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो कॉपी करना है सर. In the right angled triangle EGH, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल EGH में पाइथागोरस यूज कर रहे हैं. Using Pythagoras, we can say that this EH square is written as EG square plus it is written as GH square. Okay, and thus EG is written as, EG can be written as EF plus say FG. Okay, so this EH square can be written as EF plus say FG square plus say it is GH square. Okay, now you have to just place the values. The length EH, it represents the magnitude of vector R. So instead of the CH, we can write out simply the magnitude of vector R, that is R. So R square can be written as EF. This length EF is the magnitude of vector A. So A. Instead of EF, we are writing out A. Now what is FG? We don't know. So let us write it as FG over here. Then GH, again we don't know. So let us say GH square. Got it? बेटा यहां तक कॉपी करें. Now, अब ध्यान से देखें. In the
राइट ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इन द राइट ट्राइंगल से एफ जी एच साइन थीटा कैलकुलेट करें. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इट इज से जी एच डिवाइडेड बाय एफ एच, एंड द लेंथ एफ एच, it represents the magnitude of vector b. So instead of this fh we can write out b. This fh, it was equals to say b, so the sine theta is written as say gh divided by b. Okay, now we get the value of gh. Gh is written as say b sine theta. Got it? Okay, हो गया. अब बेटा यहां पर कर रहा हूं तो इसको मिटा रहा हूं. Now, in the right triangle, चलिए राइट ट्राइंगल की तो बात हो गई थी, दोबारा कर लेते हैं. ऐसा करते हैं, ऑल्सो कर लेते हैं. ऑल्सो cos थीटा, बेटा इसी ट्राइंगल के अंदर पहले sin थीटा यूज कर लिया, अभी cos थीटा यूज कर रहे हैं. cos थीटा इज रिटन एज बेस से fg divided by the hypotenuse say fh. So this fg is written as say fh cos theta. So this fg is written as say it is b cos theta. तो यहां से हमें gh का वैल्यू मिल गया और fg का वैल्यू मिल गया, तो fg का वैल्यू और gh का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे. क्लियर? ओके, समझ आ गई ये बात? ऐसा करें कि यानी जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क कर लें. इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क कर लें. फर्स्ट मार्क करने के बाद लिखें, वर्ड्स में लिखें, द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी री रिटन एज. द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी री रिटन एज. इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट कर लें. इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट करें, मैं यहां पर कर रहा हूं. ठीक है? सो इक्वेशन फर्स्ट में वी आर हैविंग आर स्क्वायर, फिर हमारे पास था ए ब्रैकेट एफ जी का वैल्यू लगाएं प्लस इट इज बी कॉस थीटा स्क्वायर, जी एच का वैल्यू लगाएं इट इज बी साइन थीटा स्क्वायर. बात समझ आ गई? एक्सपेंड कर लें. सो दिस आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आर स्क्वायर इज रिटन एज ए स्क्वायर. बेटा इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, we are left with sin square theta plus cos square theta then plus 2ab cos theta. समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी करें इसको. डन. अब ध्यान से देखिए, sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta 1 होता है. So we can say this r square can be written as a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, समझ आ गई बात? ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, दिस r कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल पावर 1/2. होल पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 1/, ये स्क्वायर रूट. वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज से द इक्वेशन सेकंड. तो ये इक्वेशन सेकंड है. इक्वेशन सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. The equation second is the
मैग्नीट्यूड ऑफ से वेक्टर आर। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर सुनिए कैसे निकलेगा। जब डायरेक्शन निकाला जाएगा तो यहां पर कोई यूनिट वेक्टर्स तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ये वेक्टर्स को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर्स का, तो जो डायरेक्शन डिफाइन होती है वो हमेशा एंगल से होती है। पल्ले पड़ी बात। तो बेटा वेक्टर आर और वेक्टर ए की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल था वो था अल्फा। क्लियर? तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम tan अल्फा कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल से EGH, बड़े वाला ट्राइंगल EGH था, tan ऑफ अल्फा की बात करें, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर से GH डिवाइडेड बाय बेस हुआ करता था EG। ओके, और EG को हमने लिखा था, दस EG वॉज EF प्लस से FG। ओके, सो दिस tan of alpha it can be written as say GH divided by EF प्लस से FG। ओके, अब बेटा वैल्यूज लगा ले। GH का वैल्यू था B sin थीटा। ओके, EF का वैल्यू था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और FG का वैल्यू निकाला था B cos थीटा। पल्ले पड़ गई बात। ये तीनों वैल्यूज यहां पर डालें, ये तीनों वैल्यूज यहां पर डाल दें आप। So the tan of alpha is written as say B sin theta divided by A plus B cos theta. Clear? Or you can say that alpha is written as tan inverse, बेटा tan को अगर ले जाएंगे तो 1/tan हो जाएगा, 1/tan को लिखते हैं tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta। ये स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। समझ आ गई बात? तो बेटा ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड से हम अल्फा को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? आप ऐसा करें, इसको इक्वेशन थर्ड लिख लें। ओके, पल्ले पड़ गई पूरी डेरिवेशन। अब इस बेटा डेरिवेशन के केसेस करते हैं, ध्यान से देखना आप केसेस को। ठीक है, डेरिवेशन यहां तक कंप्लीट है। जब ट्रायंगल लॉ आए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आए तो स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखने के बाद ट्रायंगल लॉ आए तो जो फिगर मैंने बनाया था वो बनाना है। अगर पैरेललोग्राम लॉ आए, ठीक है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना अपनी बुक से देख लेना, अल्फाबेट्स यही यूज करना, लेटर्स यही यूज करना, सब कुछ यही यूज करना। मैं एक काम करता हूं, फिगर बना देता हूं आपके लिए, और सारी की सारी वर्ड बाय वर्ड सारे स्टेप्स यही लिखने हैं आपने। एक बार यह फिगर बना देता हूं, अगर पैरेललोग्राम लॉ आपको देखना है तो। ये फिगर है, ठीक है, EFGH हमने वही रखा है। समझ आ गई बात? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। तो ये फिगर था, ये फिगर ड्रॉ करना है अगर एग्जाम्स में आ जाए, और सारे स्टेप्स यही लिखने हैं जो मैंने बताए थे आपको। गॉट इट? ओके ओके। अब बात करते हैं केसेस की।
अब ध्यान से देखिए बेटा केसेस। केस फर्स्ट, बेटा सेम डायरेक्शन, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे मार्क होगा? रिजल्टेंट पहले तो कैसे मार्क होगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं तो लेट अस सपोज दैट दिस वेक्टर ए, लेट अस सपोज दैट दिस वेक्टर बी। क्लियर? बेटा सेम डायरेक्शन में हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। बेटा थीटा अगर 0 है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इज रिटन एज से b sin 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 0 डिग्रीज। ठीक है, अब बेटा sin 0 कितना होता है? sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो tan अल्फा निकल के आ गया 0, तो अल्फा निकल के आ गया 0 डिग्रीज। अल्फा 0, और याद रखें अल्फा क्या था? अल्फा एंगल था बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां से क्या पता लगता है? यहां से पता लगता है कि वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में एंगल 0 है, तो इसका मतलब वेक्टर आर और वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन में मार्क हो गए। क्लियर? समझ आ गई ये कैलकुलेशन? अब ध्यान से देखिए, तो बेटा आपने क्या करना है, अब ये जो केसेस है ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल्स होंगे। समझ आ गई बात? बेटा जब पहले आपने क्या करना है, आपने हमेशा गिवन वेक्टर्स को मार्क करना है, गिवन वेक्टर्स को मार्क करने के बाद आपने रिजल्टेंट वेक्टर मार्क करना है। रिजल्टेंट वेक्टर याद रखें, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा वेक्टर ए के अलोंग आएगा। मतलब ये कह देते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर भी दोनों की डायरेक्शन के अलोंग आएगा। समझ आ गई बात? पल्ले पड़ी बात? तो पहला स्टेप हो गया रिजल्टेंट वेक्टर मार्क करना है। ओके, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। This R is written as root of a square plus b square plus 2ab cos 0 degrees। थीटा 0 है, थीटा 0 है, cos 0 1 होता है, so this R is written as a root of a square plus b square plus 2ab। Got it? अब इसे कैसे लिखेंगे आप? This R is written as root of a plus b का होल स्क्वायर। ओके, अब बेटा a plus b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया this R is written as a plus b। समझ आ गई बात? तो बेटा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किधर मार्क होगा? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के अलोंग मार्क होगा, पहली बात। दूसरी बात, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है। क्या करना है? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देख लें कैसे। लेट अस सपोज ये कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर बेटा दो फोर्सेस लग रही है। पहला फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है और दूसरा फोर्स लेट अस सपोज से 1 न्यूटन लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, दोनों फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर केस। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा सपोज से F1 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 2 न्यूटन और F2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1 न्यूटन। क्लियर? तो पहले तो वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे आप, से वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। ये वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर F is the resultant of vector F1 and vector F2। सॉल्व कैसे करना है? This F is written as say F1 is 2 plus say 1 Newton। So this F is equals to say 3 Newton। समझ आ गई बात? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड करना है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? ओके। Now the case second. Case second. Opposite direction. Opposite direction में थीटा हमेशा 180 डिग्रीज होता है। क्लियर? Let us suppose से it is से वेक्टर A, let us suppose से it is से वेक्टर B। अब ध्यान से देखें, बेटा सेम डायरेक्शन में कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये देखना होता है कि डोमिनेटिंग वेक्टर कौन सा है।
डोमिनेटिंग वेक्टर वो वाला होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब बेटा वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जहां पर स्ट्रेट लाइन का लेंथ ज्यादा है उससे जो वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ध्यान से देखें, यहां पर ऊपर वाली जो लेंथ है नीचे वाली लेंथ से ज्यादा है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर? तो पहले बात करेंगे डायरेक्शन की। अब ध्यान से देखें, थीटा 180 हो जाएगा तो tan अल्फा is written as say b sin 180 divided by a plus b cos 180 डिग्री। अब sin 180 जीरो होता है तो tan अल्फा जीरो आ गया, तो अल्फा 0 डिग्री आ गया। अल्फा 0 डिग्री आ गया मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में एंगल 0 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। पल्ले पड़ी बात? कैलकुलेशन समझ आ गई? कॉपी कर लें जल्दी से। डन? अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये तो करके दिखा रहा हूं डेरिवेशन के लिए, आपने तो इसको हमेशा न्यूमेरिकल्स में करना है। न्यूमेरिकल्स में खास ध्यान रखना, जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर मार्क किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा डोमिनेटिंग वेक्टर के अलॉन्ग मार्क किया जाता है। किधर मार्क करना है? डोमिनेटिंग वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके अलॉन्ग मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर मार्क करेंगे दिस वे। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो लेंथ है दोनों लेंथ के डिफरेंस के इक्वल होगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। नाउ दिस r is written as under root of a square plus b square plus 2ab cos 180 डिग्री, ओके। और cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1, तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, -2a। so this can be written as, this r is written as root of a minus b whole square, so this r is written as a minus b। तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। कैसे करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके, बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करना है। समझ आ गई बात? ओके, चलिए कॉपी करें इसको, एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं इसका भी। एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। Let us suppose that is the surface, say the block। मान लेते बेटा वेक्टर F1 इधर लग रहा है और वेक्टर F1 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज सपोज से 10 न्यूटन। वेक्टर F2 इधर लग रहा है और वेक्टर F2 का जो मैग्नीट्यूड है लेट अस सपोज इट इज से 4 न्यूटन। अब क्लियरली आपको दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का पहले वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे आप। से वेक्टर F is written as से वेक्टर F1 प्लस से वेक्टर F2। तो वेक्टर F को क्या बोला है? ये वेक्टर इक्वेशन हमेशा लिखनी पड़ती है, ये प्राइमरी स्टेप होता है। तो वेक्टर F is the resultant of वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। सॉल्व कैसे करेंगे? दिस F जब नेगेटिव निकाल रहे हैं तो सिंबल के ऊपर एरो का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। बड़े वाला वेक्टर कौन सा है? F1, छोटा वेक्टर F2। सो इट इज F1 माइनस से F2। So this F is equals to 10 Newton minus say 4 Newton. So this F is equals to say 6 Newton. Got it? और रिजल्टेंट किधर मार्क होगा? रिजल्टेंट किधर मार्क करेंगे आप? रिजल्टेंट मार्क होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F1। वेक्टर F को आपने रिजल्टेंट बोला था, वेक्टर F1 टुवर्ड्स राइट है तो आप बोलेंगे कि वेक्टर F टुवर्ड्स राइट मार्क होगा। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? तो बेटा ये था एनालिटिकल अप्रोच फॉर ट्राइंगल लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे करना है? न्यूमेरिकल्स में बेटा हमेशा ये एक्सप्रेशन यूज होगा। क्लियर? ओके, ये tan अल्फा का जो चक्कर है अगर डायरेक्शन पूछे तो यूज करना है, अदरवाइज जो टेक्निक मैंने बताई है रिजल्टेंट वेक्टर मार्क करने की वो करना है।
समझ आ गई बात? ओके ओके, कॉपी करें जल्दी से। चलिए एक केस और करते हैं। केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड करते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए तो थीटा 90 डिग्री हो गया। बात समझ आ गई? क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 180 के अलावा कुछ भी हो जाए, 0 डिग्री और 180 के अलावा कुछ भी हो जाए, तो इनिशियल फिगर में जब वेक्टर ए और वेक्टर बी मार्क करना है तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। क्लियर? थीटा का वैल्यू, फिर दोबारा बोल रहा हूं, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 डिग्री और 180 के अलावा तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का फिगर मार्क होगा। देखिए कैसे। लेट अस सपोज इट इज वेक्टर ए, लेट अस सपोज इट इज वेक्टर बी। गॉट इट? क्लियर? अब रिजल्टेंट वेक्टर किधर मार्क करेंगे आप? ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ को रिकॉल करिए। पैरेललोग्राम लॉ को रिकॉल करिए। ये पैरेललोग्राम था, एडजेसेंट साइड्स ने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसे रिप्रेजेंट किया था डायगोनल से। क्लियर? तो बेटा थीटा तो हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं दोनों के बीच में मार्क होगा। किधर मार्क होगा? दोनों के बीच में मार्क होगा, बट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट वेक्टर। इंक्लाइन करके बिल्कुल एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे मार्क नहीं करना है। वेक्टर आर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए कैलकुलेशंस कैसे करना है। मार्किंग ऐसे करनी है, ये मार्किंग है, मार्क ऐसे करना है। ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। दिस आर इज रिटन एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0, तो r कितना हो जाएगा? इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई? ये रिजल्ट है, ये आंसर है। ओके ठीक है, चलिए एक और करते हैं। एक और करते हैं। ठीक है, सिर्फ केसेस दो बताए हैं मैंने आपको, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर करके दिखा दिया। एक और करके दिखा रहा हूं। Yes, suppose say theta is equal 60 degrees. ठीक है, theta is equal to 60 degrees. Theta was the angle between vector A and vector B. ध्यान से देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि बेटा थीटा का अगर कोई भी वैल्यू हो जाए, कुछ भी वैल्यू हो जाए 0 और 180 के अलावा, तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का फिगर मार्क होगा। ठीक है, let us suppose it is vector A and let us suppose it is vector B. क्लियर? मैंने लेंथ वेक्टर ए का ज्यादा रखा है। ठीक है, सो दिस एंगल इज से 60 डिग्री, ये एंगल 60 है। क्लियर? अब रिजल्टेंट वेक्टर मार्क करेंगे, किधर मार्क करेंगे? कहीं दोनों के बीच में मार्क करना है, बट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे मार्क कराया मैंने। ठीक है, इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स वेक्टर ए, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कम है। समझ आ गई बात? तो पहले वेक्टर आर को सिंबॉलिकली आपने रिजल्टेंट वेक्टर बोला है, तो पहले आप बताएंगे कि किसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। सो वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। इसको लिखने के बाद सबसे पहला होता है फिगर, न्यूमेरिकल्स में याद रखें, सबसे पहले फिगर मार्क किया जाता है, उसके बाद वेक्टर इक्वेशन लिखा जाता है, और उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है। अब मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, सो आर इज रिटन एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से 2ab cos 60 डिग्री। क्लियर? cos 60 कितना होता है? 1/2।
So r is written as root of a square plus say b square plus say 2 into a into b into 1 by 2. cos 60 का वैल्यू है 1 by 2. 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. So the result is r is equals to a square plus say b square plus say. पता लगा फिगर में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मार्क करना है, फिर वेक्टर इक्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन. समझ आ गया? ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, and in the next lecture I will discuss some numericals which are based on triangle law of vectors, clear, or the parallelogram law of vectors. कुछ numericals की प्रैक्टिस दूंगा. Okay, so this is all for today.